Assalamu alaikum. Today's lecture is going to be about Aristotle's tragic hero, or you can say the characters in tragedy. So, in the previous lectures, we have discussed imitation according to Aristotle and Plato. Then we discussed Aristotle's concept of tragedy, and I explained in the previous lecture that tragedy is the central concept of poetics because all the other concepts they spring from his concept of tragedy. So in today's lecture we will be talking about tragic hero. Who is a tragic hero? So dear students, you must keep one thing in your mind that Aristotelian concept of tragic hero is that the hero must be an exceptional individual both socially as well as personally. It means that the people belonging to high class they should be the heroes in the tragedies according to Aristotelian concept of tragedy. People from low classes or women they cannot be the tragic hero according to Aristotle. And the same concept of tragic hero it was applied by William Shakespeare as well because when you talk about William Shakespeare you see that Macbeth, Othello, King Lear, Hamlet, they were the tragic heroes, and we know this thing very well that these tragic heroes they are from the you can say high rank. Macbeth, for example, he was the general of army. Then you can say Hamlet, he was a prince of Denmark. King Lear, he was a king, and the same you can say the case with was the case with Othello. So these are all the heroes that came from the higher you can say ranks from in society. So if we talk about Greek tragedies, you know very well that Oedipus he was a king. You can say that Bacchae was a play that was written by Euripides, and Bacchae was a god. So these are the heroes actually. One thing must be kept in mind. So Aristotle explanation of the effect of fear and pity provide a further insight into the connection between the action, character and action. पिछले लेक्चर में हमने ये बात की थी ये एग्जामिनेशन के अंदर पीछे भी सवाल ये पूछा गया है कि एरिस्टोटल के मुताबिक जो ट्रेजिडी के अंदर जो एक्शन होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लॉट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कैरेक्टर कम इंपॉर्टेंट है। तो हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ट्रेजिडी इज़ नॉट एन इमिटेशन ऑफ मैन बट इट इज़ एन इमिटेशन ऑफ मैन इन एक्शन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन के अंदर भी हमने इस बात को वाज़ह किया, तो इस बात को फर्दर हम एलेबोरेट करेंगे। तो ये होता है लफ्ज़ ट्रेजिक फ्ला। ट्रेजिक फ्ला के लिए एज फार एज एरिस्टोटल इज़ कंसर्न ही यूजेस द वर्ड हेमार्टिया। ठीक है, हेमार्टिया का मतलब ट्रेजिक फ्ला। ट्रेजिक फ्ला होता है कि जो ट्रेजिक हीरो होता है उसके अंदर एक यानी एक हेमार्टिया होता है, एक ट्रेजिक फ्ला होता है, और वो जो ट्रेजिक फ्ला होता है वो उसकी हम कह सकते हैं कि ट्रेजिडी का बायस बनता है। मतलब मिसाल के तौर पे कि अगर हम मैकबेथ की बात करते हैं, शेक्सपियर का मैकबेथ है, उसके अंदर जो होता है ना वॉल्टिंग एम्बिशन है, यानी ही वांट्स टू बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, और ये इसके अंदर एक वॉल्टिंग एम्बिशन है। ठीक है, इसलिए इसकी ट्रेजिडी जो है वो खूब होती है। इस तरह जब हम देखते हैं कि जो हेमलेट है, हेमलेट बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है। ठीक है, तो उसकी ट्रेजिडी इस वजह से वकूफ़ पज़ीर होती है। इसके अलावा देखते हैं कि इंग्लियर है वो ही इज़ वेरी इम्पल्सिव। ठीक है, वो बहुत इम्पल्सिव किस्म का आदमी है। ठीक, तो इसलिए उसकी ट्रेजिडी होती है। तो ईडीपस को अगर हम देखते हैं तो ईडीपस रेक्स के अंदर ईडीपस जो है वो बड़ा एक जल्दबाज है और बड़ा एक मुतकब्बिर भी है। ठीक है, ह्यूब्रस है उसके अंदर, इसलिए उसकी ट्रेजिडी होती है। तो ट्रेजिक फ्ला का ये कंसेप्ट होता है। अब आगे कहते हैं देखिए ट्रेजिडी के अंदर एक चीज़ आती है पिटी एंड फियर। ठीक है, देखिए ट्रेजिडी का मकसद तो यही होता है ना कि पिटी और फियर के हमारे जो जज्बात होते हैं उनको उबारना। ठीक है, तो पिटी एंड फियर पिछले भी हमने डिस्कस किया था लेक्चर में। तो अब पिटी और फियर एरिस्टोटल के मुताबिक क्या कहते हैं, पिटी सेज एरिस्टोटल is aroused by the undeserved misfortune. Fear is aroused when we realize that the man who suffers such misfortune is like ourselves. यानी ये पिटी एंड फियर के जो था ना जज्बात को उबारना होता है, ट्रेजिडी का काम होता है। अब इसका मतलब है कि जब पिटी एंड फियर जब पैदा होगा तो हर किस्म का हर बंदा हर करैक्टर जो होगा वो हमारा यानी वो पिटी एंड फियर को उबार नहीं सकेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो होता है ना कि एज फार एज एरिस्टोटल इज़ कंसर्न ही मेंट ही डज नॉट say that all people you can say anybody can be
फिट फॉर द ट्रेजिडी, ठीक है। उसमें सर्टन पीपल शुड बी फिट फॉर ट्रेजिडी। अब वो कहता है कि हैंस emotions cannot be inspired by a wicked man prospering, nor can they issue from the seeing the misfortune suffered by an either entirely worthy man or and thoroughly bad man। यानी ना ही जो होता है कि ट्रेजिक हीरो ना ही बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत ही अच्छा है, यानी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ना ही बहुत बुरा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो पिटी एंड फियर के जज्बात तो हमारे अरोज नहीं करेंगे, ठीक है। कहते हैं लेकिन इनके दरमियान का होना चाहिए। एरिस्टोटल कहता है ही मस्ट बी अ मैन हु इज़ नॉट प्री एमिनेंटली वर्चुअस एंड जस्ट येट इज थ्रू नो बैडनेस, ठीक है। यानी ना ही वो बहुत ज़्यादा बुरा होगा और ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, यानी उसके अंदर एक दरमियान का एक लेवल होता है, ठीक है। अगर बहुत बुरा होगा तो फिर हमारे अंदर पिटी एंड फियर तो बिल्कुल पैदा नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत बुरा होगा तो अब भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसमें बात कर रहा है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, देखें वो कहता है एरिस्टोटल ने 4 डायमेंशन दिए हुए हैं, ठीक है। पहला डायमेंशन ये होता है कि द फर्स्ट इज़ दैट द कैरेक्टर मस्ट बी गुड। अब गुड का उसके लिहाज से क्या मतलब है, देखिए गुड का मतलब है जो हम गुड का मतलब लेते हैं, ठीक है। बट व्हाट वी नीड टू डू इज़ दैट वी हैव टू इंटरप्रेट द वर्ड गुड विद इन द एरिस्टोटेलियन फ्रेमवर्क। तो अब इसके हवाले से देखते हैं कि गुड का मतलब क्या होता है। वो कहते हैं गुड का मतलब कहते हैं द वर्ड एरिस्टोटल यूजेस फॉर गुड, ठीक है, इज़ ये लफ्ज़ है जी चेस्टोस, ये पता नहीं कि इसे कैसे पढ़ते हैं चूँकि ये इंग्लिश का लफ्ज़ नहीं है। विच कैन मीन मॉरली गुड, ऑनेस्ट वर्दी, बट इट आल्सो मीन यूजफुल वैल्यूएबल इन सर्विस। यानी गुड का मतलब जो था ना एरिस्टोटल के मुताबिक ये होता है कि मॉरली गुड होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, वर्दी होना चाहिए और वैल्यूएबल सर्विसेबल भी होना चाहिए हीरो को। वी कैन इन्फर फ्रॉम द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट दैट एरिस्टोटल इज टॉकिंग अबाउट द वैल्यू और प्रॉपर्टी ऑफ यूजिंग सर्टन पर्सन इन ट्रेजिडी। देखिए यहाँ से जब वो अरिस्टोटल ये कहते हैं ना कि कैरेक्टर को गुड होना चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यानी ऑल पीपल आर नॉट फिट फॉर ट्रेजिडी बट देयर आर सम सर्टन पीपल हु आर फिट फॉर ट्रेजिडी, ठीक है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर जो वोमेन होती हैं और स्लेव्स होती है वो गुड होते हैं, ठीक है। अब गुड का देखिए, गुड का हम आज का जो मीनिंग ले रहे हैं, आज के मीनिंग के लिहाज से हम उससे नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। एरिस्टोटल के मुताबिक गुड का मतलब मॉरली गुड है, ऑनेस्ट है, फिर सर्विसेबल भी है, फिर वैल्यूएबल भी है, फिर यूजफुल भी है, ठीक है। तो एरिस्टोटल के मुताबिक जो वोमेन और स्लेव जो होते हैं दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी द ट्रेजिक हीरोज, ठीक है। क्योंकि एरिस्टोटल की जो उसका जो मौक़िफ़ है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके अंदर क्या होता है कि चूँकि जो सिटीजन्स होते हैं ना, सिटीजन्स, वो अब इसकी पॉलिटिक्स एक किताब है, पॉलिटिक्स को जो उसने लिखी हुई है, तो उसके अंदर वो ये बात बयान करता है कि जो वोमेन है, ठीक है, और जो स्लेव्स होते हैं वो शहरी नहीं है, उनको शहरियत हासिल नहीं हो सकती, ठीक है, यानी उनको सिटीज़नशिप हासिल नहीं हो सकती, ठीक है। उसकी वजह ये बताता है कि यानी चूँकि जो शहरी होते हैं ना, जो सिटीजन होते हैं, ठीक है, वो होते हैं जो कि हुकूमत के मामलात के अंदर यानी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, और वोमेन भी नहीं कर सकती, और इसके अलावा जो होता है ना कि वो स्लेव भी नहीं कर। दैट्स वाई कि इनको जो है ना इनको ट्रेजिक हीरो भी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि सिटीज़न नहीं है, ठीक है। वैसे बड़ी अजीब बात हमें आज के दौर में लगती है, लेकिन ज़ाहिर है उस अगर हवाले से उसके दौर के हवाले से बात की जाए तो फिर हमें ये बात समझ आ सकती है। तो एक तो ये चीज़ होगी। इसके बाद आगे देखें आता है, आगे कहते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि एरिस्टोटल जो है ना एक पैट्रियार्किकल एलीट किस्म की जो था ना लोगों के लिए लिटरेचर को रिजर्व कर रहा है, ठीक है। कहते हैं इन सोसाइटी इन सेक्शन ही हैड क्लेम दैट अप्रोप्रिएट मटेरियल फॉर ट्रेजिडी वुड बी फाउंड बाय परपेचुअल रिकोर्स to few families which were beset by frightening calamities. Aristotle thus deserves the province of literature for the cultural expression of male social elite. The dilemmas and experience of women and slave are relegated to secondary importance. देखें अब यहाँ फिर देख लें कि ट्रेजिडी का जो वो एक प्रोविंस है, जो लिटरेचर का प्रोविंस होता है, ठीक है, उसको वो एक यानी एलीट क्लास और एक एलीट जो होता है ना पैट्रियार्किकल जो क्लास होती है उसके लिए वो उसको रिजर्व कर देता है, ठीक है। तो अब आगे आता है जी बात कि द अदर मोर जनरल पॉइंट विच एमर्ज फ्राम एरिस्टोटल्स फॉर गोइंग comments on the characters that not just that action is suitable for imitation, ठीक है, बट ओनली एक्शन विच entail द moral dilemma। देखें ट्रेजिडी के अंदर जो एक्शन होता है, हर एक्शन को जो होता है ना, क्योंकि शुरू से उसने ये बात की थी जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसने कहा ट्रेजिडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ
एक्शन दैट इज सीरियस, ठीक है। अब इसका मतलब है कि हर किस्म का जो एक्शन होता है, हर किस्म का जो यानी एक्शन होगा वो ट्रेजिडी का मौजू नहीं बन सकता, ठीक है। कि सर्टन एक्शंस आर मेंट टू बी द टॉपिक इन ट्रेजिडीज एंड सर्टन एक्शन आर नॉट मेंट टू बी द टॉपिक्स फॉर ट्रेजिडी, ठीक है। वो ट्रेजिडी का सूटेबल एक्शन कौन हो सकता है, कौन सा, जैसे मॉरल डायलेमा हो। मॉरल डायलेमा देखें ना, मॉरल डायलेमा इसमें एक अखलाकी कशमकश जिसमें अंदर एक पाई जाती हो। मतलब मिसाल के तौर पे आप ओथेलो की अगर बात करें, ठीक है, तो ओथेलो के अंदर आपने देखा होगा, आपने इसको पढ़ा होगा कि ओथेलो के अंदर जब आयागो है, आयागो जब ओथेलो के जहन में एक शक डालता है, ठीक है, तो फिर उससे एक मॉरली चॉइस यानी मॉरली चूज़ करना पड़ता है ना, ठीक है। एक मॉरल डायलेमा का शिकार हो जाता है। इस तरह मैकबेथ की बात करें तो मैकबेथ को जब विचिस ये बताती हैं, जब उसमें चुड़ैलें होती हैं, जब वो ये बताती हैं कि जो था ना कि यू विल बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है, तो उसके एक मॉरल डायलेमा पैदा हो गया ना, यानी एक उसके अंदर वो कैसे बन सकता है, किंग डंकन को मार के बन सकता है, ठीक है। तो एक मॉरल, इसका मतलब है कि यानी सर्टन एक्शंस आर मेंट टू बी फिट फॉर ट्रेजिडी। अब इसके बाद आगे कहता है, एरिस्टोटल बताता है कि अप्रोप्रिएटनेस, ठीक है, ये टर्म यूज़ करता है। कहते हैं एरिस्टोटल सेकंड प्रेस्क्रिप्शन इज दैट द करेक्टर डिपिक्टेड शुड बी अप्रोप्रिएट, ठीक है। अ मैन एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल शुड नॉट एक्ट लाइक अ वोमैन और वाइस वर्सा। वो कहता है कि जैसे करेक्टर हैं ना, ओके, उसे ऐसा ही होना चाहिए। यानी इसका मतलब शायद ये भी लगता है कि यानी जैसे ट्रू टू लाइफ होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक मैन है, उसे मैन की तरह ही होना चाहिए, ठीक है। एक वोमैन है तो वोमैन की तरह ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी इसमें आ सकती है बात। इसके बाद आगे आता है लाइकनेस क्या चीज़ होती है, ठीक है। अगर लाइकनेस की बात करें तो लाइकनेस का मतलब होता है, देखिए इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से ट्रांसलेट किया गया है लाइकनेस वर्ड को, ठीक है। कहते हैं एरिस्टोटल थर्ड प्रेस्क्रिप्शन इज मोर प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। ही अर्जेस दैट अ करेक्टर शुड बी लाइक, ओके। लाइक का मतलब क्या होता है। अब लाइक को, ये जो लफ्ज़ है ना, इसको मुख्तलिफ जब तर्जमा करने वालों ने, मुतरजमीन ने मुख्तलिफ तरीके से तर्जमा किया है, तो इसको हम देखते हैं। तो एक ये कहता है कि इंटरप्रेट दिस, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि यानी रिजेंबलिंग, ठीक है, बट आल्सो द सेम रैंक और स्टेशन, ठीक है। दूसरे ने एक कहते हैं कि इसमें एथिकल रियलिज्म इससे मुराद है। एथिकल रियलिज्म का मतलब होता है कि जैसे कैरेक्टर ट्रू टू लाइफ है, जैसे हैं वैसे ही होने चाहिए, ठीक है। तीसरा इसमें तर्जमा ये करता है कि ट्रेडिशनल पर्सन होना चाहिए, ठीक है, इससे ये मुराद है। एंड अदर ट्रांसलेटर ऑफ एरिस्टोटल सुजेस्ट दैट by like Aristotle means like the traditional person in as much as Achilles should not be portrayed as soft or Odyssey as stupid, ठीक है। वही मेरे इसमें लाइक का ये तीन इसके मीनिंग बन रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रेजिडी का उसका जो कंसेप्ट है, ठीक है। अब इसमें एक दो चीज़ हम इसमें हवाले से देखेंगे कि देखिए जो कैथारसिस होता है ना, कैथारसिस आल दो कि इसके अंदर यानी डायरेक्टली तो नहीं आ रहा, लेकिन इसमें चूँकि जब पिटी एंड फियर की बात आई है तो इसके अंदर फिर कैथारसिस का जो एरिस्टोटल का कंसेप्ट है वो भी हमारे सामने नज़र आ जाता है। अब कैथारसिस क्या है उसको हवाले से हम देखते हैं कि कैथारसिस को किस तरीके से एरिस्टोटल जो होता है ना अपनी यानी बयान करता है, ठीक है। इसके लिए मैं ये जे एकैडन की किताब है, जे एकैडन की डिक्शनरी, तो वो कहता है कैथारसिस क्या है। कैथारसिस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है परगेशन, ओके। एरिस्टोटल जो होता है ना कि ही यूजेस दिस वर्ड इन हिज डेफिनेशन ऑफ ट्रेजिडी। देखिए पीछे उसने ये कहा था, वो कहते, लेकिन ये जो कैथारसिस का लफ्ज़ है ना, याद रखें इसके जो एग्जैक्ट मीनिंग है ना वो उसमें इट इज़ डिबेटेबल, ठीक है, इट इज़ ओपन टू डिबेट, ठीक है। तो कहते हैं देयर हैज़ बिन डिबेट, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली व्हाट ही मेंट। लेकिन की सेंटेंस वो कहता क्या है ट्रेजिडी के बारे में, ट्रेजिडी दो थ्रू पिटी एंड फियर इफेक्ट्स अ परगेशन ऑफ सच इमोशंस, ठीक है। इसका मतलब होता है सो इन द सेंस ट्रेजिडी हैविंग अराउज पावरफुल फीलिंग्स इन द स्पेक्टेटर्स हैज आल्सो अ थेरेप्यूटिक इफेक्ट, ठीक है। आफ्टर अ स्टॉर्म एंड क्लाइमैक्स देयर कम्स अ सेंस ऑफ रिलीज फ्रॉम टेंशन ऑफ काम, ठीक है। अब देखें मिसाल के तौर, यानी इसमें मैं पहली बात हमने क्या की है कि ट्रेजिडी का ये जो कैथारसिस का लफ्ज़ है, कैथारसिस के लफ्ज़ में एग्जैक्ट जो था ना इसके मीनिंग का और वी डू नॉट नाउ, ठीक है। बट व्हाट वी कैन गेस फ्राम दिस डेफिनेशन ऑफ कैथारसिस दैट इज़ गिवन इन दिस बुक एंड आल्सो एक्सप्लेन्ड बाय एरिस्टोटल, उसका मतलब ये हो सकता है कि जब हम ट्रेजिडी ज़ाहिर देख रहे होते हैं तो उसमें हमारे पिटी और फील तो अराउज होते हैं, ठीक है, यानी हमारे अंदर उसका अफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, ठीक है। अब इस अफेक्ट पड़ने के बाद जो होता है ना कि हम बाद में खुद से इमेजिन करना शुरू कर देते हैं, ये थेरेप्यूटिक इफेक्ट रखता है हमारे ऊपर। जैसे मिसाल के तौर पे हम मैकबेथ को देखते हैं तो मैकबेथ की ट्रेजिडी हमारे सामने होती है तो पिटी और फियर तो पैदा होता ही होता है, लेकिन बाद में शायद मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपना एक मौक़िफ़ ये है कि बाद में ऐसा होता है कि हमारे ऊपर हम जो था ना हम इमेजिन करते हैं, हम कहते हैं कि देखो ये मैकबेथ जो था ना इसके अंदर वॉलेटिंग एम्बिशन थी, इसने एम्बिशन को बहुत परवान चढ़ाया तो इसलिए ऐसा इसके साथ हुआ। इसका मतलब है कि हमारे साथ साथ में जो था ना हम मॉरली अपने आप को पल्ज कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी हम पल्ज कर हम ये भी सोच रहे होते हैं कि हमने
हमने ऐसा नहीं करना। हमने अपने रिश्तेदार, अपने करीबी लोगों को, हमने उनको इस चीज़ से बचाना है। हमने कहना कि देखिए ये बुरी चीज़ होती है, ठीक है। या मिसाल के तौर पे ओथेलो को जब हम पढ़ते हैं तो ओथेलो को जब हम देखते हैं तो पिटी एंड फियर की फीलिंग हमारे अंदर अरोज होती हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि देखो ओथेलो के अंदर ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, क्योंकि उसने जो था ना, उसने यानी उसके अंदर ये एक उसने ज़रूरत से ज़्यादा जो था ना कि यानी इसमें शक करना शुरू कर दिया था, ठीक है। या मिसाल के तौर पे किंग लियर को देखते हैं तो हम ये फिर मतलब अपने अंदर एक शायद ओपिनियन ये कायम करते हैं कि यानी ये जो था ये ज़्यादा इम्पल्सिव था, और इम्पल्सिवनेस जो होते हैं वो हमारे ट्रेजिडीज़ का बायस, इसलिए हमें ज़िंदगी में इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो शायद इस तरीके, या मिसाल के तौर पर एडिपस को देखते हैं तो तब भी उसमें हमारे सामने पिटी एंड फियर की फीलिंग पैदा होती हैं, ठीक है, जज्बात हमारे अंदर पैदा होते हैं। फिर हम उससे यानी इमेजिन करते हैं, हम खुद से अपने आप को पल्ज करते हैं, यानी वो जो हमारे अंदर फीलिंग जमा हो जाती है ना, उससे हमने अपने आप को साफ करना होता है, ठीक है, अपने को पल्ज करना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो ये जो था इडिपस जो था ये बड़ा मुतकब्बिर था, ये बड़ा मगरूर था और बड़ा हेस्टी था। तो ज़िंदगी में हमें हेस्टीनेस से जो था ना और हेस्ट से और इसके अलावा ह्यूब्रिस से बचना चाहिए। तो इस हवाले से जो था ना कैथारसिस का कंसेप्ट हो सकता है। थैंक यू सो मच।